Hi. My name is Shiv, and I'm an artist. But the important thing is that I feel really happy. I don't know why, what's the reason, but the important thing is that I am happy. बहुत दिनों बाद अच्छा अच्छा लग रहा है और अच्छे मूड में था तो सोचा कि कब तक ही अपनी बेकार वाली स्टोरी सुनाता रहूँगा, कब तक ही क्या ही मतलब घिसी पिटी मतलब कितना ही अपने दिन के बारे में अपडेट दूंगा, कितना ही वो घिसी-पिटी स्टोरी सुनाऊँगा या नॉट घिसी-पिटी बट क्या ही इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है वो स्टोरीज़। तो ठीक है मतलब कभी-कभी चलता है बट डेली में क्या मतलब वो है, डेली तो नहीं सुना सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब थोड़ा-सा तो क्यों ना ऑडियो बुक नहीं, क्यों ना बुक पढ़ी जाए मतलब बुक रीड की जाए। सो अब मैं इस वीडियो में या आने वाली कुछ वीडियोस में आई विल रीड सम ऑफ माय बुक्स, सम ऑफ माय बेस्ट बुक्स दैट आई रियली लाइक, और जो मुझे लगता है कि यार जिसने मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड की। सो अगर आप मेरे को अपना टाइम दे ही रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख ही रहे हो, I should add some value in your life, or I should give some quality work. So that's why I just feel like I should read something for you. और ये सिंपल जस्ट रीडिंग नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीड करता जाऊँगा। आई विल रीड, आई विल शेयर माई थॉट्स, माई ओपिनियन अबाउट दैट थिंग, वट ऑफ द स्टफ आई विल रीड, and and yeah, we can discuss about, not we can, I can discuss about with myself. I just can record whatever I feel, whatever I think about that thing. But yeah, I just want to read, and yeah, I feel happy and I feel energetic, and I just want to read, I just want to record something. And so that's why, तो कौन सी बुक मैं पढ़ने वाला हूँ? I'm gonna read uh, sorry, 101 essay, 101 essay that will change the way you think. uh, Brain Wist, Brana Wist, I don't know, BRIANNAWIEST, Brina Wist, something, I don't know. पहले मैं ये बता दूँ कि I can speak little bit English. I'm not that much fluent in English. I'm not that much good in English. I have learned English just by watching some movies, just by copying some accent of the people um, who used to speak English. The English is the first language of those people, so it's not my first language. It's my like kind of third language. I belong to Punjab. I'm from Punjab, so Punjabi is my first language. So after that, I have to learn Hindi. But because I belong to the Uttarakhand also, because my mom and my dad is from the Uttarakhand, and it's a different story. I don't want to go into that story right now. Some other days maybe. But yeah, my mom from the Uttarakhand, so I also belong to the Uttarakhand, and people used to speak Gadwali and Hindi in that place, so that's why I know Hindi a little bit, but still I have to learn because I born in Punjab, I grew up in Punjab, so I have to learn Hindi. So how did I learn Hindi? In the childhood, I learned Hindi from watching movies and watching some serials and whatever the stuff is available on the television, on the TV. So I have heard that thing, and subconsciously I just start learning, and most of the things I have learned subconsciously in my life. Just like English. English is not my first language, it's my third language. I have consumed lots of content in English. I have saw some, I have I start watching like the Trevor Noah is my one of the favorite stand-up comedian. But I also like him because of his accent, the ability of speaking. He can speak in different accents, so that's why I just love him. I just love him because of his sharp memory, because his life, like the life journey, because of his like the story, and lots of things connect me with him. Also the Veerdas and lots of other people also. But yeah, I just want to speak. I just want to speak. I just love English, but I didn't learn from the college or from the school, so I don't know how to use grammar properly. But yeah, but I'm not faking any kind of accent. It could sound like that, but because I have learned English while listening and while copying with other people, so
and I never speak in my circumstances in English. I can only speak English whether I'm alone, when I'm alone, um, and yeah, whether I'm someone with some international. I have some international friends like the Dimi and Dimi, Leah, Michelle, um, Katrina, lots of like they are from the different country, and I have met them in the yoga school, so we become friends, we become like the really good friends. So we are still in the contact, and sometimes we talk in phone call, or that's why only then I can speak English. So English is not my first language, so if I make any kind of mistake, please forgive me, please don't make fun of me. If you want to make fun of me, just thumbs up you can make. But yeah, it was just like um what do we say that thing in English? See, English is not my first language, that's why I don't know what we say. But yeah, I just want to alert, or not alert, what word I can use for that thing, whatever it is. So I just want to tell you that if I can make mistake, because I don't know how to speak English. Like I can, but I don't know it's like right English or wrong English, or like am I saying something right? It's a simple thing. Like whenever I speak, I feel like okay, um, is it like sounds good? Just like I have already given you the one example in some of my one of my videos, like 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 if I have to say something like मैं ऋषिकेश में पिछले 3 महीनों से रह रहा हूँ या पिछले 4 महीनों से रह रहा हूँ, so I will say that thing in English by assuming that, because it has been only 6 months that I'm in the Rishikesh. It has been only 6 months that I have been in Rishikesh. It has been, so yeah, it sounds good, and I don't know it's grammar, uh, it's a right or wrong in a grammar way, but yeah, I feel like it sounds good, then it should be right. And another thing that I have learned while talking with international people, with talking with my international few friends, um, there is only Indian people make fun when someone speak wrong English, when someone doesn't speak right English. In another country, if someone is from Japan, and if someone from Philippines, sometimes even I met some people who are also struggling. They are from the different country, and they are also struggling while speaking English, because English is not their first language. English is also not their first language, and they are not ashamed of that thing, because they are trying to learn, they are learning, they are in the process. Or even if they know how to speak proper English, still they don't make fun of someone who can't speak proper English. They know they are trying, they are English. For them, English is just a language, English just a way of communicate. If you can understand someone while observing their body language, or observing um, their any kind of thing, like if someone want to ask for water, if they can understand, even someone is struggling to ask for the water is so basic stuff. Any kind of thing, if they are trying to say something but they are wrong, but still someone understand, like the that person understand what he's trying to say, they are okay with that. They don't make fun of those people, they don't make fun of that person, they don't feel like, oh, it's he can't speak English, it's so big thing. For them it's totally normal, totally natural, totally okay. They are okay with that. Only in India, if you only in India, or specifically like in Punjab, or in like in my village, even if you use any kind of English word, just like yes, say, please, or any kind of even not the thank you or sorry, but yeah, that kind of, even if you use small words of English, speaking English is a totally different thing. Even if you use small words, they will like look at you like you are a kind of alien, and you are from the different world something. And so it's become a very big stuff for them.
and that's why you don't get the chance to speak, to practice, or to use that English, even if you have learned somehow. So yeah, but yeah, the the thing I want to say, if I make mistake, please forgive me. I'm just trying to learn English. I'm not that much good. I can make mistake. I'm a human. I'm trying to learn, and that's all. So yeah, I should not like get distracted from the topic. So yeah, this is not the audiobook. This is kind of book reading. If it's include in the audiobook or something else, I don't know. But yeah, it's a kind of thing that I will just read. I'm gonna start. Shiv, just start. Don't talk another stuff. Okay. Yeah. So it's the book, 101 Essay That Will Change the Way You Think, and let's see what's inside the book. Oh, yep. In this book, Spanish. Okay, in this book, Spanish doctor Yuval Noah Harari explained that at one point, um, there were more than just Homo sapiens roaming the earth. In fact, there were likely as many as six different type of humans in existence: Homo sapiens, Homo. Damn, it's really hard word. Neanderthalensis. don't I don't know how to pronounce that, but just move on. Uh, Homo solutions. It's a scientific word. Maybe that's why I can't pronounce, because, but I can read a little bit in English, but it's like a scientific name. Maybe that's why I can't read. Homo erectus. I don't know. Erectus, erectus, whatever it is, and etc. One more thing. If I'll find some word, any kind of word hard, I will, I will spell that word. And even if I can't speak, it's not a big thing. Let's move on to the next one. But if I feel like there is something that I have to describe, or that I feel like I understand properly and I want to describe more, I will describe more. Just like that. It's a highlight. There is a reason Homo sapiens still exist today, and another didn't. Continue to evolve. Continue to evolve a prefrontal. Okay, a prefrontal cortex. A prefrontal cortex that which we can infer from skeleton structures. Essentially, we had the essentially we had the ability to think more complex. Those were able to organize, cultivate, teach, practice, habituate, and pass down the word, suited for survival. Because one of our capacity of, sorry, if I can bend the, because our capacity to imagine, we were able to build Earth as it is today out of virtually nothing. In the sense, the nation that taught create that, in the sense that notion that thoughts create reality is more than just a nice idea. It's also a fact of evolution. तो इसमें इन्होंने बताया कि लाइक दुनिया में सिर्फ होमो सेपियंस ही नहीं थे. देयर आर 6 मोर कैटेगरीज, मतलब 6 और तरह की प्रजातियाँ थी जो कि इंसानों की जैसी थी, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए, हम सर्वाइवल कर पाए. इसका मेन रीज़न है एवोल्यूशन, इसका मेन रीज़न है चेंज, इसका मेन रीज़न है that we evolved, that which we can, कि हमने
आवर एबिलिटी टू थिंक मोर कॉम्प्लेक्स, कि हम ज़्यादा जटिलता से सोच सकते हैं, हम चीज़ों को सीख सकते हैं, हम बता सकते हैं, इसलिए हम सर्वाइव कर पाए. In the sense that notion that thoughts create reality is more than just a nice idea. कि ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये सिर्फ एक लाइक सिंपल सा कोट नहीं है कि आपके थॉट्स से आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं. इट्स अ फैक्ट दैट वी कैन अंडरस्टैंड while watching our evolution journey. Yep. It was because of language and thoughts that we could create today, that we could create a world within our minds. And ultimately it's because of language and thoughts that we evolved into the society we have today, for better and worse. कि हम अपने दिमाग में जो थॉट्स से या जो लैंग्वेज से अपनी एक दुनिया बनाते हैं, जो भी इन्वेंशन होती है या जो भी चीज़ें बनती हैं दुनिया में, जो भी चीज़ें आती हैं, पहले हमारे दिमाग में बनती हैं. पहले किसी को एक आइडिया आता है कि ऐसा करके देखते हैं, तो वो आइडिया उनके दिमाग में जन्म लेता है, वो आइडिया उनके दिमाग में क्रिएट होता है. Because they have thoughts, they have language, they can use word, they can use sentence to create that reality in their mind, and after that reality exists in the real world. तो कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेंशन पहले किसी के दिमाग में होने, मतलब किसी की बाहर, मतलब सोसाइटी में दिखने से पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया आता है. और वो आइडिया क्यों आता है? क्योंकि वो सोच सकते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज है, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ हैं. Yep. Almost every great master, artist, teacher, inventor, innovator, and generally happy person could attribute some similar understanding to their success. Of many of the world's best people understood that to change their life, they have to change their minds. कि किसी भी ग्रेट इंसान ने, किसी भी महान इंसान ने ये सबसे पहले ये चीज़ समझी, किसी भी खुशहाल इंसान ने सबसे पहले ये चीज़ समझी, या कोई भी टीचर हो, आर्टिस्ट हो, इन्वेंटर हो, साइंटिस्ट हो, या कोई भी इंसान हो, कोई भी महान इंसान हो, कोई भी खुश मिजाज इंसान हो, उसने पहले सबसे पहले यही सोचा कि अगर हम अपने थॉट चेंज कर सकते हैं, अगर हमारे विचार चेंज हो गए, तभी हमारी लाइफ चेंज हो सकती है. एंड दैट्स द ट्रू. आई रियली बिलीव इन दैट थिंग. जैसे कि मैं कल या परसों या कुछ दिन तक नेगेटिव सोच रहा था, तो मेरी एनर्जी कितनी लो थी. मैं नेगेटिव थॉट सोचे जा रहा था और मैं उससे उभरने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं हो रहा था, बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे. बट राइट नाउ आई फील हैप्पी, बिकॉज ऑफ माई पॉजिटिव इमोशंस, बिकॉज ऑफ माई पॉजिटिव थाट्स. एक पॉजिटिव थाट्स मेरे दिमाग में आया और उसने मेरी पूरी की पूरी एनर्जी शिफ्ट कर दी. उसने मेरे को पूरा का पूरा लाइक you can see the change in my energy, you can see the shift, you can see that energy that I have shifted from negative to positive, and yeah, that you can observe clearly. And yeah, next, um, these are some people who have communicated to us some of the longest standing conversational wisdom. um, that to believe is to become that one, that the mind is to be mastered, that the obstacle obstacle that the obstacle is the way. Often our most intense discomfort is what oh sorry, books. um often our miss sorry
our most intense discomfort is what produced and nestic nestics. Thinking in the way that we have thinking in the way that we have never con- convinced of before. That new awareness create possible that new awareness create new possibilities that would never exist had or never have been never not. फिर से मैं पढ़ता हूँ इस लाइन को. That new awareness create possibilities that would never exist, had we not have had we not been forced to learn something new. Why did our ancestors develop architecture, society, medicine, and the like to survive? The elements of our world and were more once just solution to fear. In more cerebral context, if you continuously learn to if you if you consciously learn to regard the problems in your life as opening for you to adopt a great understanding and then develop a better way to living, you will step out of labyrinthine whatever, of suffering and learn what it meant to be thrives whatever. I believe that the root of the work I believe that the root of the work of being human is learning how to think. I believe that the root of the work of being human is learning how to think. From this, we learn how to love, how to share, uh, coexist, tolerate, give, create, and so on. I believe the first most I believe the first most important duty we have is to actualize the potential we were born with, uh, both for ourselves and for the world. The unspoken line of everything I write is, this idea changed my life, because ideas ideas are what changed lives, and that was the first idea that has changed mine. Wow, क्या सुंदर लाइन है. ये कोटेबल लाइन है यार. फिर से पढ़ता हूँ मैं. द अनस्पोकन लाइन ऑफ everything I write is, this idea changed my life, because ideas are what change lives, and that was the first idea that changed mine. क्या सुंदर लाइन है ना. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अभी हमने सिर्फ एक पेज पढ़ा और ये पेज काउंट भी नहीं होता. अमेजिंग. बट पेज को छोड़ो, मतलब क्या ही रखा है पेज के काउंटिंग में. वी just enjoy the process and just learn something. And what I have learned that, मतलब दुनिया में कितनी अजीब बात है ना कि दुनिया में हमारी तरह की, इस किताब में बताया कि दुनिया में हमारी तरह की 6 प्रजातियाँ थी, बट वो लोग इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से सोच नहीं सकते थे, सीखने की एबिलिटी नहीं थी, या इसलिए उन्होंने अडेप्ट नहीं किया माहौल के अनुसार या सर्कमस्टेंसेस के अनुसार. उन्होंने खुद को अडेप्ट नहीं की, चीज़ें अडेप्ट नहीं की, खुद को उस माहौल में नहीं ढाला, इसलिए वो ज़िंदा नहीं है. और हम लोग ज़िंदा हैं. हम लोग मतलब कहाँ से कहाँ आ गए. तो ये जस्ट बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू थिंक मोर कॉम्प्लेक्स, एंड तो इस किताब की इंट्रोडक्शन में यही बताया कि अगर हम अपने विचार चेंज कर सकते हैं, अगर हम अपनी थिंकिंग चेंज कर सकते हैं, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी, हम इस दुनिया को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, और हम कुछ भी कर सकते हैं. हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस वर्ल्ड पे. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह से. नेगेटिव नहीं डालना, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं. इसलिए अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, तो वो चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी.
Yeah, that was really beautiful thing. And yeah, now chapter 1, subconscious behavior that are keeping you from subconscious behavior that are keeping you from having the life you want. इसका क्या मतलब है? Subconscious behavior that are keeping you from having the life you want. पढ़ के देखते हैं, मतलब चैप्टर शुरू करके देखते हैं, फिर पता चलेगा. तो सॉरी, अभी तक मतलब क्लियर हुआ, मतलब आपको क्या ही पता, मेरे को क्या ही पता चलेगा कि आपको. सुनते रहिए, ध्यान से सुनिए, मेरे साथ पढ़िए, मतलब मेरे साथ सुनिए, पढ़िए तो क्या ही. बट बहुत अच्छी बुक है ये. मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी पढ़ी हुई थी, बट फिर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया. बट अभी मैंने सोचा कि इसको ऑडियो बुक में कन्वर्ट किया जाए, इसको वीडियो रिकॉर्ड की जाए और तब पढ़ा जाए तो कितना बेस्ट होगा. चलो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना टॉपिक से. चलो फिर से पढ़ते हैं. Subconscious behavior that are keeping you from having the life you want. So every generation has monoculture. Yeah, thank God. Every generation has a monoculture of shots of govern governing governing patterns or system of benefit that people unconsciously accept as a truth. It's easy to identify the monoculture of Germany in the 1930s or America in 1976. It's clear what people at those times, what people at those times in those places accept to be good and true, even when the reality there was certainly not always the case. The objectivity required to see the effect of present the effect of present monoculture is very difficult to develop. um, once you have once you have to once you have so deeply accepted the idea as truth, it doesn't resist as cultural or subjective anymore. Wow. Once you have so deeply accepted the idea as truth, it doesn't resist as cultural or subjective. जो मैंने समझा इस लाइन से, मुझे लगता है इस लाइन का मतलब है कि अगर हम किसी भी बात को बहुत अंदर तक सच मान लेते हैं, बहुत दिल से सच मान लेते हैं, तो फिर वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो कितनी सच है या कितनी फिर वो चीज़ सब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव नहीं रह जाती. सब्जेक्टिव क्या होता है, आई डोंट नो. बट हाँ, कुछ समझ में आया है. जो समझ में आया यही है कि किसी भी बात को अगर हम डीपली सच मान लेते हैं तो वो सच हो जाती है शायद, या वो सच या हमारा सच तो बनी जाती है. सो मच ऑफ आवर इनर turmoils is the result of conducting a life we don't inherently desire, only because we have accepted an inner narrative of normal an idea without ever realizing. ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, द फंडामेंटल्स ऑफ एनी गिविंग मोनोकल्चर ट्रेंड टू surround what we should be living for: nation, religion, self, etc, extra, whatever. And there are number of ways in which our current system has shooting ourselves in the feet as we try to step forward. Here 8 of the most perceives. Number 1, you believe that creating your best life is the matter of detecting what you want and no detecting नहीं. अबे यार क्या पढ़ रहा है, शुरू से. You believe that creating your best life is matter of deciding what you want and then going after it.
वो ये समझ में आया. You believe that creating your best life is the matter of deciding what you want and and then going after it. But in real but in reality you are psychologically incapable of being able to predict what will make you happy. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. वेल इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, बट स्टिल मैं एक बार फिर से पढ़ लेना चाहता हूँ अपनी तसल्ली के लिए कि क्या है इसका मतलब, क्या है ये, क्या कहना चाहते हैं. You believe that creating your best life is the matter of deciding. You believe that creating your best life is a matter of deciding what you want and then after going after it. But in reality, you are psychologically incapable of being able to predict what will make you happy. कि हमें लगता है कि हमारी बेहतर ज़िंदगी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसको सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम फिर उसको हासिल करने के लिए उसके पीछे जाते हैं. बट इन रियलिटी साइकोलॉजिकली आई एम नॉट कैपेबल ऑफ प्रिडिक्ट. मतलब मैं साइकोलॉजिकली इतना कैपेबल ही नहीं हूँ कि प्रिडिक्ट करने के कि मेरे को क्या चीज़ खुशी देगी. हिंदी में इसका अनुवाद यही हुआ बट मैं समझा नहीं. लाइक ओके कोई बात नहीं, आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे, तो मैं देखता हूँ कि क्या एक्सप्लेन किया है, क्या उन्होंने बताने की कोशिश की है. ओके, योर ब्रेन कैन ओनली परसीव मतलब समझना. योर ब्रेन कैन ओनली परसीव what is known and what is noun. And so when you choose what you want for the future, you're actually just recreating a solution or an idea of the past. When things don't work out the way you want them to, you think you have okay when things don't work out the way you want them to, you think you have failed only because you didn't recreate something you perceived as desirable. In reality, you likely created something better. But fortune and your brain Mr. MISINT printed and your brain misprinted as a bad because of that. Moral of the story: living in the moment isn't a lofty ideal reserved for the Zen and ENLIGHTENED enlightened, whatever we are. It's the only way to live the life that isn't infiltered. Okay, isn't infiltered with illusions, and it's the only thing that your brain can actually comprehend. 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 Why I didn't understand them? मतलब मैंने पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ. This is what I'm trying to say.
कि that English is not my first language. Sometimes I just read something and sometimes I don't understand the meaning of that, but I can read. But yeah, just like that. But if I'll read once or twice, maybe I will understand. Let's see. So जो भी मैंने पढ़ा मैं फिर से पढ़ूँगा. ओके, ये मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं फिर से वही वाली चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ. ओके. Your brain can perceive what is noun, so when you choose what you want, your brain can only perceive what is noun. So when you choose what you want for future, you are actually just recreating the solutional or an ideal of the past. When the things don't work out the way you want them to, you think you have failed only because you didn't recreate something that you perceived as a desirable. In reality, you are likely to create something better and fortune, and your brain misprinted it as a bad because of that. कि हमारा दिमाग सिर्फ वही चीज़ें समझ सकता है जिसे हम पहले से जानते हैं. तो जब चीज़ें हमारे मर्ज़ी के अनुसार या हमारे मन मुताबिक या जो भी हमने सोचा होता है या जो भी हमारी इमेजिनेशन होती है एज अ सक्सेस की, अगर वो ना हो तो हम उसे एज अ फेलियर देखते हैं. हाँ, लाइक अच्छा ठीक है समझ में आ रहा है. 1 मिनट. अगर हम कोई भी चीज़ कोई भी काम करने से पहले उसका फल पहले ही निर्धारित कर लेते हैं अपने दिमाग में, अपने मन में, कि हम ये कर रहे हैं तो इसका आउटकम ये निकलना चाहिए. बट अगर आउटकम जो हमारे उस चीज़ से मैच ना करे जो हमारे दिमाग में थी, जो हमारे दिमाग में आइडिया था उस चीज़ का, क्योंकि हमारा दिमाग तो पहले से ही उन चीज़ों को समझता है. हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समझता है जो हम पहले से जानते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, समझ गया. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ और अगर मेरे दिमाग में पहले से एक आइडिया है कि लोग वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं और वो फेमस हो जाते हैं और वो रिच हो जाते हैं. हाँ, तो अगर मेरे वीडियो डालने के बाद मैं फेमस और रिच नहीं हुआ तो मैं खुद को एज अ फेलियर देखूँगा. हाँ, तो मैं खुद को एज अ फेलियर देखूँगा तो वो मेरे को डिसपॉइंट करेगा. बट इन रियलिटी आई हैव क्रिएटेड समथिंग न्यू एंड समथिंग मेरी वीडियो बनाने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. अगर मेरा कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. आई विल नो हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इन फ्यूचर आई विल लर्न मोर स्किल्स लाइक एडिटिंग एंड अनदर स्टफ. एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं कैमरे के सामने आके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. मेरी ज़िंदगी उस चीज़ के इर्द गिर्द इवॉल्व करेगी. मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ उसके रिज़ल्ट को ही कंपेयर करूँगा. तो अगर वो रिज़ल्ट मेरे दिमाग के, जो मैंने दिमाग में अपने एक रियलिटी वो बना के रखा था, एक सक्सेस का एक सो कॉल्ड स्ट्रक्चर बना के रखा था, अगर ये रियलिटी उससे मैच नहीं होगी तो मैं खुद को फेलियर समझूंगा. समझ गया. हाँ, तो इसमें बोलना चाहते हैं वो, इसमें कवि कहना चाहते हैं, इसमें राइटर साहब, लेखिका कहना चाहती हैं कि हमारे दिमाग में पहले से ही, हमारा दिमाग वही चीज़ों को समझता है जो पहले से ही तय होती हैं हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे. जैसे कि अगर किसी का कोई भाई, चाचा, मामा, ताया, कोई भी रैंडमली कोई भी पर्सन, कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी पड़ोसी के पास गाड़ी है तो हम समझते हैं कि अगर उन्होंने काम करके एक अच्छा घर बना लिया है, अच्छी गाड़ी ले ली है, तो हमारे दिमाग में एक सक्सेस का एक पैटर्न सेट हो जाता है कि यार जिसके पास गाड़ी है वही सक्सेसफुल है, जिसके पास अच्छा घर है वही सक्सेसफुल है. या सक्सेस को पैसे से कन्वर्ट कर लेते हैं. एक अपने दिमाग में एक आइडिया बना लेते हैं कि ये ऐसा पर्सन ही सक्सेसफुल होता है. तो फिर जब हम लाइफ में कुछ करते हैं, अगर हमारी सक्सेस
उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे मैच ना करे तो हम खुद को फेलियर समझते हैं, हम खुद को समझते हैं कि हम उस चीज़ में ठीक नहीं कर पाए। हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डॉक्टर हो और आपका पड़ोसी एक बिजनेसमैन है, और आपके बिजनेसमैन दोस्त के या पड़ोसी के पास में एक गाड़ी है और वो कुछ भी काम करके कोई भी बिज़नेस करके अपने पास बड़ा घर और बड़ा बंगला ले लेते हैं, एंड यू आर ए डॉक्टर, बट अगर आप खुद की सक्सेस को उसके बिजनेस से कंपेयर करो कि अभी आपके पास गाड़ी नहीं है या अभी आपके पास बंगला नहीं है, तो वो फेयर कंपैरिजन नहीं है, बट आपका दिमाग पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे सोचता है। बट इन एक्चुअल अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो तो आपका सक्सेस इस बात पे निर्भर करना चाहिए कि आपने कितनी लोगों की जान बचाई, आपने कितने लोगों को हेल्दी बनाया, या आपने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों को खुश किया। हाँ, मतलब पैसा गाड़ी भी मैटर करता है, बट मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी, मतलब मैंने यही चीज़ सीखी उससे कि हमारी सक्सेस हमारे दिमाग में पहले से निर्धारित होती है, या हम कोई भी चीज़ को पहले से कोई भी काम को कर, इवन एक पेंटिंग बनाने से पहले ही हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है कि एक अच्छी पेंटिंग इसे बोलते हैं। अगर हमारी पेंटिंग उसके मुताबिक नहीं बनेगी तो हम उसको एज अ फेलियर देखेंगे या हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। गॉट इट। आई होप सो आपको भी समझ में आया होगा। लाइक दिस इज़ रियली गुड कॉन्सेप्ट। ओके, दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या बोल रहे हैं। एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट है योर एक्स्ट्रापोलेट you extrapolate the present moment because present sorry you extrapolate the present moment because you believe that success is somewhere you arrive. You extrapolate the present moment just you extrapolate the present moment because you believe the success is somewhere you arrive. So you are consistently constantly consistently, no, so you constantly, okay, so you constantly trying to take a snapshot of your life and see if you are happy, if you can be happy yet. Why that English is so difficult to understand? I have to read it again. You extrapolate the present moment because you believe the success is somewhere you arrive. So you constantly trying to take a snapshot of your life and see if you can be happy yet. थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट क्लियर करने के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो उसको पढ़ते हैं पहले. You convince yourself that any given moment is representative. You convince yourself that any given moment is representation of your life as a whole, because we are wired to believe that success is somewhere we get to. Success is somewhere we get to. When the goals are accomplished and things are completed, we consistently measuring our present moment by how finished and they are how good the stories and the how good story sounds, how someone else would judge elevator speech. We found ourselves thinking, is this all there is? Because we forget that everything is transitory and no one is single essence is
in sentence. No one is single in sentence that summarize the whole. There is nowhere to arrive to. There is nowhere to arrive to. The only thing the only thing you are rushing towards is death. Accomplish goal is not success. How much you expand in the process. Accomplish Accomplishing goal is not success. Succeed success. How much you expand in the process is. I have to read it again. I don't know मेरी इंग्लिश को क्या हो गया. ठीक है ना, सीख रहे हैं. Point number 2. You extrapolate the present moment because you believe that success is somewhere you arrive, so you are consistently trying to take a snapshot of your life and see if you can be happy yet. You convince yourself that any given moment is a representative of your life as a whole, because you are wired to believe that success is somewhere we get to. When the goal are accomplished, that things are completed. We are consistently measuring our present moment by how finished they are and how good the story sounds, and how someone else would judge the elevator speech. We find ourselves thinking this is all there is, because we forget that everything is transitory, and no one single sentence that can summarize the whole. There is a nowhere to arrive to. The only thing you are rushing towards is okay. There is nowhere to arrive to. The only thing that you are rushing towards is death. Accomplishing goal is not success. How much you expand the process is. ओके. देखा, कई बार पहली बार पढ़ने पे नहीं समझ में आता, बट अगर आप उसी चीज़ को दूसरी या तीसरी बार पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कवि क्या कहना चाहते हैं या राइटर क्या कहना चाहते हैं. सो इसमें हमें बताया है कि हम हमेशा मतलब हमारे दिमाग को ऐसे वायर किया गया है कि सक्सेस कहीं पे पहुंचना है. सक्सेस इज़ समवेयर वी हैव टू गेट. लाइक सक्सेस इज़ समवेयर वी गेट टू. लाइक कहीं पे पहुंच के कुछ अचीव करके सक्सेसफुल बनेंगे. बट राइटर कहना चाहते हैं कि मतलब हम आज में नहीं जीते हैं. अगर हमारा कोई भी मोमेंट है तो हम उसको ऐसा देखते हैं कि ये कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है. ये कितना अच्छी स्टोरी, मतलब अगर कोई बोलेगा कि यार शर्मा जी ने गाड़ी ले ली तो ये कितना अच्छा साउंड करेगा, सिर्फ इस बात पे वो है करता है. प्रोसेस डजंट मैटर फॉर यू. आप जब प्रोसेस में होते हो तो उसको इतना एंजॉय नहीं करते हो, जबकि आपकी मतलब हमेशा ध्यान इस बात पे रहता है कि हमें कहीं पे पहुंचना है, हम कुछ अचीव कर लेंगे, उसके बाद हम सक्सेसफुल बनेंगे, उसके बाद हम सक्सेसफुल कहलाएंगे. जबकि रियलिटी ये है कि हम सिर्फ डेथ की ओर भाग रहे हैं. हर दिन हमारा बीतता हुआ हमें हमारी मौत की तरफ लेके जाता है. कभी मैं 19 साल का था, आज मैं 25 साल का हो जाऊंगा. नहीं, अभी मैं 25 साल का हूँ. एक्सेप्ट दैट ट्रूथ. आई एम गोइंग टू बी 25 इन अक्टूबर. सो अगर सितंबर 2 महीने बाद मैं अक्टूबर का हो जाऊँगा, तो एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ यार कि मैं 25 का हूँ. मेरे को बहुत वो होता है यार, डर लगता है मेरे को बढ़ती एज से ना, कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते. और लाइक आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग. मैं अपनी स्टोरी में नहीं जाऊँगा, बट मैं 2-3 हाईलाइट्स बता देता हूँ. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग. मैंने पैसा एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक, मैंने प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक, और मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे दोस्त नहीं रहे हैं तो मेरे को नहीं पता है कि दोस्ती कैसी होती है, या
दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना या दोस्तों के साथ हैंग आउट करना किसे बोलते हैं, कैसा होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने बस काम किया और वो काम भी इतना सफल नहीं हुआ है। बट जो भी होगा, मतलब मेरे सॉरी, अभी मैंने क्या पढ़ा था कि हमारे दिमाग में जो चीज़ पहले से फिक्स्ड होती है। मैं सक्सेसफुल हूँ यार, मैं पेंटिंग बना सकता हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। यस, आई एम अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट। क्योंकि मैंने पेंटिंग किस लिए सीखी थी कि मैं पेंटिंग बना पाऊँ, राइट। मैं पेंटिंग बना पाता हूँ, उससे पैसे आने कब आने वो बात की बात है। वो क्या पता इन द फ्यूचर ज़्यादा लोग मेरे को जानेंगे तो मेरे को ज़्यादा कमीशन वर्क मिल सकते हैं, हो सकता है कि मेरे को बड़े कमीशन वर्क्स मिले, हो सकता है तब मेरे को ज़्यादा पैसे आ जाएँ। जो पढ़ो वो अप्लाई भी करो शेफ़। तो अभी मैंने पढ़ा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा कि सक्सेसफुल हमारे दिमाग में पहले से एक फिक्स आइडिया होता है कि सक्सेस क्या होती है। एक लाइव एग्जांपल मिल गया आपको। तो ठीक है, जो भी मैंने सीखा, वो जो भी मैंने 4-5 साल लगा के सीखी पेंटिंग्स कैसे बनाते हैं, तो या दैट्स द सक्सेस आई गेस। वो उसका प्रोसेस ही सक्सेसफुल था। लाइक मैंने सीख लिया है, मेरे को आता है पेंटिंग बनाने, तो दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने लाइफ में ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसलिए मेरे को बढ़ती एज से बहुत ज़्यादा डर लगता है। थोड़ा सा तो डर लगता ही है कि यार मेरी एज आ रही है, मैंने अभी अपनी लाइफ में कुछ इतना अचीव नहीं किया है। तो लाइक थोड़ा सा डर तो लगता है, बट ठीक है। बट ठीक है। तो हाँ, तो इसमें भी वही बताते हैं कि हर दिन, जैसे अभी मैं 25 का हो जाऊँगा, फिर मैं आज से 5 साल बाद 30 का हो जाऊँगा, फिर 50, और पता नहीं कब मेरी डेथ, मतलब रैंडमली एक नंबर मान लो कि 60 पे या 70 पे अगर मेरी डेथ होनी होगी, तो मैं हर दिन अपनी डेथ के करीब जा रहा हूँ। देर इज़ नथिंग दैट आई हैव टू आई हैव रशिंग फॉर समथिंग स्पेशल। कि ऐसा नहीं कि मैं फेमस हो जाऊँगा उसके बाद मैं सक्सेसफुल होऊंगा। क्या जो मैं आज कर रहा हूँ, मैं मुझे उसमें अपनी सक्सेस दिखती है? क्या जो मैं आज कर रहा हूँ, क्या जो मैं आज फील कर रहा हूँ, क्या जो मैं आज मैंने काम किया मुझे उसमें अपनी सक्सेस दिखी? क्या मैंने आज अपने आज को एंजॉय किया? क्या मैंने अपने आज को ऐसे देखा कि हम सुबह उठते हैं, इसीलिए दैट्स वाई आई जस्ट हेट टू डू अनदर जॉब। मुझे जॉब करने से नफरत है। मुझे कोई भी दूसरा काम करने, उस एनी काइंड ऑफ वर्क, जो भी ऐसा काम है जो मैं नहीं करना चाहता, मुझे उससे नफरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें मेरी जान जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि कभी कहीं कल मैं जाके सक्सेसफुल होऊंगा। अगर आज मेरा आज मिला है और आज मेरे को पेंटिंग बनाने का मन है, और अगर मैं पेंटिंग बना पा रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरा आइडिया ये था, बट अभी थोड़ा सा टाइम की वजह से, मतलब थोड़ा सही नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से थोड़े से थॉट फ्लक्चुएट हो जाते हैं इधर उधर। बट हाँ, मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ कि लाइक कि हम हर दिन सक्सेसफुल होते हैं और हम हर दिन फेलियर होते हैं। अगर आप जो करना चाहते थे, आपका जो ख्वाहिश थी करने की, और आपने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, आपने उसको खुल के नहीं जिया, आपने उसको पूरी तरीके से नहीं जिया, तो इसका मतलब है कि आप एक फेलियर हो। इट डज़न्ट मैटर कि आपने कोई दूसरा काम करके कितने ज़्यादा पैसे कमा लिए, कि आपका मन था डांसर बनने का या आपका मन था एक गायक बनने का, और आप म्यूज़िक नहीं कर रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो, आप रियाज़ नहीं कर रहे हो, आप गाने नहीं बना रहे हो, आप उसको सीख नहीं रहे हो, आप गा नहीं रहे हो, बट उसकी बजाय आप पैसे कमाने के लिए कोई भी दूसरी जॉब कर रहे हो, तो वो शायद वो फेलियर है। भले आप उसमें कितने भी पैसे कमा लो। आप हमेशा से गायक बनना चाहते थे, आप हमेशा से गाना चाहते थे, और आप गा नहीं पा रहे हो। आपका ये टाइम, आपका ये इतना प्रीशियस टाइम कभी वापस नहीं आएगा, और यही आपकी फेलियर है। यही किसी इंसान की सक्सेस और फेलियर यही चीज़ डिफ़ाइन करती है कि क्या उसका जो वक्त है, उसकी जो ज़िंदगी है, वो उस चीज़ में लगा पा रहा है जिसमें उसको रस मिलता है, जिसमें उसको मज़ा आता है, जिसमें उसको आनंद मिलता है। तो हाँ, यही आपका सक्सेस है और यही आपका फेलियर है। क्योंकि आप कहीं नहीं पहुँचोगे, आप बस हर दिन अपनी मौत के करीब पहुँच रहे हो, और एक दिन आप मर जाओगे। मतलब सब मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी। हाँ, ऑब्वियसली सब लोग मर जाएंगे हम। तो क्या हमने अपने आज को खुल के जिया? क्या हमने अपने आज पे लाइक जो हम करना चाहते थे वो हमने किया? मैं वीडियो बनाना चाहता था, मैं इतने टाइम से नहीं बना पा रहा था, मैंने बना क्या पा रहा था, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया, या मुझे डर था कि लोग क्या सोचेंगे। अभी भी कभी कभी जैसे मैं पोस्ट कर देता हूँ तो उस पर व्यूज़ आते हैं कि
16 पीपल, मतलब 16 व्यूज़ आते हैं, 10 व्यूज़ आते हैं, तो मेरे को अंदर से हल्का सा डर तो लगता है कि यार किस किस ने देखा होगा, ये 10 लोग कौन होंगे, ये मेरे को कैसे देख रहे होंगे, ये मेरे को कैसे जज कर रहे होंगे। बट वो धीरे धीरे टाइम के साथ निकल जाएगा। मैं इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं इसको इतना अटेंशन ही नहीं दूंगा, इस फीलिंग्स को, इस थॉट्स को इतना अटेंशन नहीं दूंगा कि ये बढ़ के मेरे ऊपर हावी हो। इट डज़न्ट मैटर, बट मेरे को कितना मज़ा आ रहा है, मेरे को कितना अच्छा फील हो रहा है वीडियो क्रिएट करने में, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज़ मैटर आई गेस। तो हाँ, मैं अपने आज को जी रहा हूँ, मैं आज सक्सेसफुल हूँ। कल को ये वीडियो इतनी वायरल नहीं भी होगी या इतना ये वीडियोस को कोई नहीं भी देखेगा, चलेगा। कम से कम मैं तो देख पाऊँगा ना। कम से कम आज से 5 साल बाद मैं ये तो रिग्रेट नहीं रहेगा मेरे मन में कि मैंने कोशिश नहीं की, या मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, या मैं किसी चीज़ में फंसा हुआ था, या मैंने खुद के ही थॉट्स के बैरियर थे। ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये इस जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसका मतलब यही था। अभी नंबर 3 इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं। इट डजंट मैटर, आई शुड नॉट काउंट हाउ मच पॉइंट इट इज़, बट आई शुड रीड द पॉइंट 3। आई होप सो आप लोगों को भी समझ में आ रहा हो कि कई बार मैं पढ़ते पढ़ते इंग्लिश में अटक जाता हूँ, तो फिर मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या समझा, मैंने क्या पढ़ा। तो आई होप सो आपको कुछ तो पता चल ही रहा होगा। ओके, पॉइंट 3, you assume that sorry okay you assume that when it's come to following your gut instinct gut instincts. Okay, when you assume that when it's come to following your gut instincts, happiness is good and the fear is pain, and the fear and pain are bad. जब हमारी गट्स फीलिंग को फॉलो करने की बात होती है, हम सोचते हैं कि हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी जो खुशी है, वो एक गुड साइन है, और बाकी जो पेन और बैडनेस, मतलब अगर हम किसी चीज़ के बारे में पेन फील करते हैं या बैड फील करते हैं तो वो ख़राब है। देखते हैं कि इसके एक्सप्लेन करने में उन्होंने क्या बताया। when you consider doing something that you truly love and are invested in, when you consider doing something that you truly love and are interested in, you are going to feel an influx of fear and pain, mostly because it will involve being unvulnerable. It is because being vulnerable. Sorry, फिर से पढ़ता हूँ. You are consider doing something that you truly love and are invested in. You are going to feel an influx of fear and pain, mostly because it will involve being vulnerable. Vulnerable. Okay, vulnerable. Vulnerable means assurakshit. Bad feelings should not always interrupted as bad feelings should not always be interrupted as deterrents. Deterrents. They are also indicators that you are doing something frightening and worthwhile. Not wanting to do something would make you feel indifferent about it. Fear is equal to interest. हाँ, समझ में आ गया कि कई बार आप समझते हो कि अगर मैं कुछ अच्छा और हैप्पी फील कर रहा हूँ तो वो
पॉजिटिव साइन है। जब हम अपने मतलब इंस्टिंक्ट्स लाइक गट इंस्टेंस इज लाइक दिल की बात या आत्मा की बात या मन की बात या जिस जो भी बोल लो कि कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है, ये फीलिंग आ रही है या वो फीलिंग आ रही है। तो हमारी जो अंदर से फीलिंग आती है, अगर वो हमें हैप्पी हैप्पी साइन दे रही है तो हम सोचते हैं कि वो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर हमारे अंदर से कोई ख़राब या हम डरावना महसूस कर रहे हैं या हमें डर लग रहा है या हम नर्वस हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो फीलिंग बैड है। वो फीलिंग बैड है और हम उसको एज अ बैड साइन देखते हैं और एज अ गुड हैप्पीनेस को एज अ गुड साइन देखते हैं। बट इसमें हमें बताते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा करोगे जो जिसमें आपको सच में, जिस काम से आपको सच में प्यार है या जिस काम में सच में आप इंटरेस्टेड हो, तो उस काम को करते वक्त हमें डर महसूस होना लाजमी है। क्योंकि कई बार हम चीज़ों के बारे में असुरक्षित होते हैं, चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है, तो हम थोड़ा सा असुरक्षित और थोड़ा सा डर तो महसूस करते ही हैं। जैसे कि मैंने वीडियोस डालने से पहले मेरे को कितना डर था। मेरे को परफेक्शन का डर था, मेरे को लाइक लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इस चीज़ का डर था। लोग मेरे पे हंसेंगे या लोग मेरी वीडियोस को कैसे लेंगे, कितने सारे डर्स थे। मेरी पहली वीडियो कितनी कितनी लाइक वो जो भी मेरा डर था उससे टोटली अपोजिट थी। कि मेरा डर था परफेक्शन का, तो उसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं है। उसमें लाइट एंगल, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, जिस वे में मैं बात कर रहा हूँ, रात के 1 बज रहा था, मतलब कुछ भी परफेक्ट नहीं था उसमें। और वो मेरे डर के बिल्कुल ही मतलब जो मेरा डर था वो मैंने सच कर दिया। बट उसके बाद जो मेरे को लाइक धीरे धीरे एक पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हुई, तो लाइक पर उस डर को क्रॉस करके ही वो फीलिंग आई, उस डर को समझ के, उस डर मतलब वो डर होना लाजमी है। वो डर आएगा क्योंकि आप श्योर नहीं हो, आप थोड़े से असुरक्षित फील करते हो। तो तो इसमें कह रहे हैं वो कि जब भी आप कोई ऐसा काम करने जाओगे जिस काम में करने को आपको मन है, आपका इंटरेस्ट है, आप उस काम से प्यार करते हो, तो उस काम में कभी डर तो आएगा ही। कभी थोड़ा सा आप नर्वस भी हो फील करोगे, थोड़ा सा आपको झिझक भी होगी, सब चीज़ें होंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैड साइन है, दे आर ऑल्सो गुड साइन। सोचो अगर आपको सारा दिन बस कुछ ना करना पड़े और सिर्फ खाना पीना और सोने को मिले और नेटफ्लिक्स एंड चिल मिले और और मतलब फास्ट फूड मिले या हर वो चीज़ मिले जो आपको एक कंफर्ट देती है, तो क्या आपको कभी डर लगेगा? नहीं लगेगा। बट क्या आप अपनी लाइफ में सिर्फ वही करना चाहते हो? Like you don't want to add any kind of value in your life. But if you want to add any kind of value in your life, you have to do something that is valuable, that 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 you have to be in that kind of situation where you will be uncomfortable, where you will be unsure, where you have to fear about something, about the future, about the work. So fear is not the feeling of something bad. Sometime it's good, sometime you have to feel that, sometime you have to be okay with that. और ये लाजमी है, ये आएगी ही आएगी, ये हर बार आएगी। हर बार अगर आप कुछ बड़ा करने जाओगे, हर बार आप कुछ नया करने जाओगे, तो वो आएगी ही आएगी। तो हाँ, तो यही था इसका पॉइंट। हाँ, क्या मैं 1 मिनट पानी पी लूँ यार? कब से बोले चाह रहा हूँ। 1 मिनट। तो 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए भाई साहब, और अभी तक 3 ही पॉइंट क्लियर। इसमें 8 पॉइंट है टोटल। तो पहले अभी ये 8 पॉइंट क्लियर कर लें, फिर शायद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे या नेक्स्ट चैप्टर या पॉइंट नंबर 2 है, मतलब ये कैटेगरीज में बांटे हुए हैं शायद। तो बट हाँ, जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस, जस्ट इन्जॉय द लर्निंग, जस्ट इन्जॉय द लेसन्स, समझो इनको। 4th पॉइंट में इन्होंने बताया है कि you endlessly
create problems and crisis in your life because you are afraid of actually living it. You unnecessarily create problems and crisis in your life because you are afraid of actually living it. कि आप अपनी ज़िंदगी में एंडलेसली मतलब लगातार ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हो क्योंकि आप सच में उसको जीने से डरते हो. इसका मतलब क्या हो सकता है? चलो देखते हैं. द पैटर्न ऑफ एंडलेस un one second. The pattern of unnecessary creating crisis in your life is actually an avoidance technique. The pattern of unnecessary creating crisis in your life is actually an avoidance technique. It distracts you from actual having to be vulnerable or healed accountable for whatever is you are afraid of. You are never upset for the reason you think you are, and core of your desire is to create the problem is simply the fear of being who you are and living the life you want. समझ में आ गया, बट एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ. मतलब आधे से ज़्यादा क्लियर हो गया है. थोड़ा सा एक बार मैं फिर से पढ़ के उसको मेक श्योर कर लेता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वही इस किताब में, मतलब क्या ये वही मेंशन किया हुआ है, क्या ये वही लिखा हुआ है. तो you are endlessly creating problems and crises in your life because you are afraid of actually living it. The pattern of unnecessary creating crisis in your life is actually an avoidance technique. It distracts you from the actual having to be vulnerable or held accountable for whatever is you are afraid of. You are never upset for the actual reason. You are never upset for the reason you think you are. At the core of your desire to create a problem is simply the fear of being who you are and living the life you want. कि ये बहुत ज़्यादा मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस बात से कि ये बात कितनी सत्य है, कितनी ज़्यादा सच है, क्योंकि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो. लाइक प्रॉब्लम सच में नहीं होती, बट हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम प्रॉब्लम को ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सच में डरते हैं उस चीज़ को करने से. क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं एक वीडियो क्रिएट करना चाहता था, मैं हमेशा कैमरा के सामने आके बात करना चाहता था, या आई लव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा. बट यहाँ पे कोई सच में प्रॉब्लम नहीं थी. मेरे पास हमेशा से एक माइक था, मेरे पास हमेशा से फ़ोन था, कैमरा था, और मैं ये क्रिएट कर सकता था. बट मैंने हमेशा से कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाया कि ये प्रॉब्लम है अभी. जैसे कि कभी मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, या मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, या मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, या मेरे पास अच्छा टॉपिक नहीं है, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं, वहाँ पे कुछ ढंग की चीज़ नहीं है बताने के लिए, या कुछ भी, मतलब या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं सोचता था कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तब मैं गाने बनाऊंगा. और अभी मेरे को लग रहा है कि मैं गाने इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे एक अच्छे से साउंड कैप्चर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास बीट्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बीट्स. बट ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब शायद मैंने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट की है, क्योंकि मैं डर रहा हूँ उस एक्शन को लेने से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके बाद का रिज़ल्ट क्या है, या मैं रिज़ल्ट से डर रहा हूँ, या मैं किसी चीज़ से तो डर रहा हूँ, या मैं उस एक्शन को लेने से डर रहा हूँ, या इवन फॉर द एडिटिंग, कि मेरे को लगता था कि
कि जब मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप आएगा तब मैं एडिटिंग सीखूँगा, तब मैं एडिटिंग करूँगा। और अब मेरे पास लैपटॉप आया और लैपटॉप पे एडिटिंग करना इतना स्लो प्रोसेस है और इतना बोरिंग प्रोसेस है, जबकि आप फ़ोन पे बहुत अच्छे से, बहुत मज़े से, उतनी ही बढ़िया एक एडिटिंग कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बहुत बेसिक लेवल का सीखते हो। तो तो लाइक तो हाँ, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था। अभी मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप को मोस्टली राइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए यूज़ करता हूँ। बट जिस काम के लिए मैंने एक्चुअली लिया था उस काम में मैं यूज़ में ले ही नहीं रहा हूँ। बट अभी मेरे को समझ में आया, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ उस चीज़ से। इवन फॉर वीडियो बनाने के लिए अभी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। वीडियो मेरे पास एक सिंपली माइक है, कैमरा, फ़ोन का कैमरा है, और मैं इसी में रिकॉर्ड करता हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा मैं इसको लाइक लंबा प्रोसेस बनाऊंगा कि पहले रिकॉर्ड किया, फिर अच्छे से एडिट किया, फिर अपलोड किया, तो मैं इसमें हज़ार तरह की, मैं इसमें खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लूँगा। ये मेरी आदत है, ये मेरा एक पैटर्न रहा है। मेरा क्या, मेरे आसपास के लोगों का मैं पैटर्न देखता हूँ, यही पैटर्न है। तो मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने पहले खुद में देखा, फिर मैंने लोगों में देखा, या पहले लोगों में देखा और फिर मैं खुद में भी जान पाया कि ठीक है, ये पैटर्न होता है और ये सच बात है। अगर मैं ये सोचूंगा कि यार वीडियो बना ली, अब इसको एडिट करेंगे, या टाइम नहीं मिल रहा एडिटिंग का, यार कैसे करूँ, फिर अगर टाइम मिल गया तो उसको कितना पोस्टपोन करेंगे, फिर उसको उसमें 100 तरह की चीज़ें डालेंगे कि यार अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं मिल रहा है, यार अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, किस किस माहौल में बैठ के बनाऊँ वीडियो, तो थंबनेल नहीं बनाया अभी, या 100 तरह की, यार कोई देख नहीं रहा है। अभी मेरी वीडियोस पे सिर्फ 10 व्यूज़, मतलब 10 व्यूज़ भी कभी कभी क्या 6 व्यूज़, 8 व्यूज़, 10 व्यूज़। तो मेरा सिंपली टारगेट होता है कि अगर 10 व्यूज़ से ऊपर आ गए, किसी पे 16 भी आए, किसी पे 20 भी हैं, तो सिंपल सा टारगेट होता है, अगर 10 व्यूज़ से ऊपर आ गए तब मैं क्रिएट करूँगा। अब मेरा वो 10 भी आके नीचे हो गया है कि लाइक सिर्फ 5 व्यूज़ भी आ गए, या मतलब ये बस मैं खुद को, वो पैटर्न नोटिस करने के बाद मैं खुद को बस पुश कर रहा हूँ कि शायद एक व्यूज़ भी नहीं आएगा अगर वीडियो पे, मैं तब भी अगली वीडियो क्रिएट करूँगा। इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट्स नॉट अबाउट द आउटकम, इट्स जस्ट अबाउट द कि मेरे को करना है और मेरे को बनाना है। तो मैं बना रहा हूँ। हाँ, तो ये पैटर्न मैंने नोटिस किया है, हम मोस्टली खुद ही अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि यार ये चीज़ नहीं हुई, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। या किसी भी, कोई भी बात ले लो उसको, मतलब वो रियलिटी नहीं होती, बस वो प्रॉब्लम हमारी ही क्रिएट की हुई होती है। एंड आई रियली फील दैट। पांचवा पॉइंट पे आते हैं। यू थिंक दैट टू चेंज योर यू थिंक दैट you think that to change your beliefs you have to adopt a new line of thinking rather than seal experience that make thinking self evident. You think that you think that you think that to change your beliefs you have to adopt a new line of thinking rather than steal the rather than seal the rather than seal the experience that make that thinking self evident. ए बिलीव, मतलब इसमें समझ में आ गया, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसको अपनी बिलीव चेंज करने के लिए सबसे पहले उसको अपनी थॉट चेंज करने पड़ेंगे, उसको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। बट लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, अगर आप किसी काम को करके एक्सपीरियंस करेंगे, तो जब आप उस काम को करेंगे तो आपकी थिंकिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी, आपकी थिंकिंग अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि मैं जो सोचता था वो गलत सोचता था, और ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, ये चीज़ें दूसरे तरीके से भी हो सकती हैं। जैसे कि मैं हर चीज़ को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और करना भी चाहिए और ऐसे ही देखना चाहिए। जैसे कि मैं वीडियो बनाने से पहले कितने परफेक्शन के बारे में सोचता था, बट जब मैंने बिना कुछ सोचे समझे, इससे पहले कि मैं अपनी थिंकिंग चेंज करूँ, मैंने अपना एक्शन चेंज किया और सिंपली मैंने वीडियो क्रिएट करना शुरू किया, और अब मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है। ये स्पष्ट है कि जब आप करना शुरू करते हो तो आपको आइडियाज़ आने लग जाते हैं। आप हमेशा परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं कर सकते। जब आप
जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो क्रिएट की थी तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, और वो आइडिया जैसा भी था, बट जब मैंने वीडियो क्रिएट करना शुरू किया, बनाना शुरू किया, दूसरी वीडियो पे, तीसरी वीडियो पे, ये पांचवी छठी वीडियो होगी, तो सिक्स वीडियो पे आते आते मेरे माइंड में और क्लैरिटी आई, और नए आइडियाज़ आए, तो वो दिमाग अपने आप क्लियर होता गया। इससे पहले कि मैं पहले ही सारी नॉलेज अपने दिमाग में भर के इधर उधर से सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करता रहता और वीडियो नहीं बनाता, तो शायद आज मेरे पास जो आइडिया आया है, जो मेरे पास ये मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, ये किसी आइडिया की वजह से आया, फील कर रहा था बेसिकली। मेरे को रात को रैंडमली एक आइडिया आया, तो जो भी वो आइडिया आया तो वो इस वजह से ही आया क्योंकि मैंने वीडियोस क्रिएट करना शुरू किया। तो हाँ, हम यही सोचते हैं कि हम पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से पढ़ देता हूँ, क्या पता नहीं उन्होंने कोई बढ़िया सी एग्जांपल गई हो, बट मैंने यही समझा है, और देखते हैं कि या क्या मैंने सही समझा है क्या। ए बिलीव इज़ वट यू नाउन टू बी ट्रू। ए बिलीव इज़ वट यू नाउन टू बी ट्रू because experience has made it evident to you. A belief is what you know is to be true, कि आपको कोई यकीन, कोई बिलीफ इसलिए सच्चा लगता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उसको स्पष्ट बना देता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उसको क्लियर कर देता है कि जो मैं सोच रहा था वो मैं सही सोच रहा था। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, जस्ट चेंज योर बिलीव्स। इफ़ यू वांट टू चेंज योर बिलीव्स, go out and have experience that make them real to you, not the opposite way around। देखा कितनी सुंदर बात की है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर बिलीव्स। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर बिलीव्स, गो आउट एंड हैव एक्सपीरियंस दैट मेक देम रियल टू यू, नॉट द अपोजिट वे। कि अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आप अपने बिलीव चेंज कीजिए, और अगर आप अपने बिलीव चेंज करना चाहते हो तो बाहर जाइए और उस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए। आपके एक्सपीरियंस आपको क्लियर कर देंगे कि आपकी वो रियलिटी देंगे कि आप कुछ और सोचते थे, तो आपको अपने एक्सपीरियंस से क्लियर हो जाएगा कि आप गलत थे। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सही थे तो आपका एक्सपीरियंस आपको और क्लियर कर देगा कि हाँ, आप उस चीज़ के बारे में सही थे। rather than thinking in the opposite way, rather than ये सोचने की बजाय कि पहले मैं अपने दिमाग में सारे आइडियाज़ क्लियर करूँगा, उसके बाद ही मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा। तो लाइक इसकी बजाय जब आप स्टार्ट करते हो तो वो अपने आप ही आपके आइडियाज़ क्लियर होते जाते हैं। देखा, सही समझा था। तो हाँ, ठीक है, मतलब ऐसे ही। मैं इतना ज़्यादा कभी बात नहीं की। हाँ, 1 सेकेंड। अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है। और ये सब ना, सब चीज़ें सेम है। जैसे कि जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, या जब भी मैं पेंटिंग करने बैठता हूँ, या जब भी मैं बुक्स पढ़ने बैठता हूँ, आप ना कहीं और नहीं होते, आपका सारा ध्यान, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट काइंड ऑफ वर्क। कि जब आप मेडिटेशन करते हो, आपको अपना सारा ध्यान अपनी सांस पे, अपने थॉट्स पे लेके आना होता है, अपनी सांस को देखना होता है, थॉट्स आते जाते रहते हैं, तो आप प्रेजेंट होते हो एक जगह पे। सेम विद द पेंटिंग, कि जब आप पेंटिंग करते हो आप एक ही जगह पे मौजूद होते हो, आपको अपने स्ट्रोक्स देखने पड़ते हैं, आपको अपनी ड्राइंग देखनी पड़ती है, आपको अपने कलर्स परफेक्ट रखने पड़ते हैं, उसमें मतलब प्रेजेंट रहना पड़ता है। अगर आप थोड़े से भी एब्सेंट हुए या दिमाग में कुछ और चला तो वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए उसको आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो क्योंकि मैं 4-5 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ, तो फॉर मी इट्स वेरी ईजी। मैं पेंटिंग करता हूँ और मेडिटेशन भी करता हूँ, सो फॉर मी इट्स वेरी ईजी टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब किसी हद तक तो ये अभी हो गया है, तो मेरे को हमेशा बहुत शांति फील होती है, बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, जब मैं पेंटिंग्स करता हूँ। आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई। तो पॉइंट 6 पे आते हैं। यू थिंक प्रॉब्लम आर रोड ब्लॉक्स टू अचीव वट यू वॉन्ट। You think problems are
roadblocks to achieve what you want, when it's reality, mm, when in reality they are the pathway. You think problems are the roadblocks to achieve what you want, when in reality it's the pathway. कि आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके रास्ते का रोड़ा है, वो आपके रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, वो आपके रास्ते को बंद कर रहा है, या मतलब अड़चन डाल रहा है किसी तरीके के आपके रास्ते में. बट व्हेन द रियलिटी इट्स अ पाथवे. बट असल में वही आपका रास्ता है. कि अगर आपके रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो प्रॉब्लम भी आपके रास्ते का पार्ट है, क्योंकि जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, उस प्रॉब्लम को हल करके, उस प्रॉब्लम से गुज़रते हो और आप कुछ नया सीख के बाहर निकलते हो. आप उस प्रॉब्लम से जब बाहर निकलते हो आप एक डिफरेंट इंसान होते हो. तो आप नई चीज़ें सीखते हो. तो वो प्रॉब्लम्स ज़रूरी हैं आपको वो पर्सन क्रिएट करने में, आपको वो पर्सन बनाने में. सो या इसको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, वो भी बताता हूँ मैं. मार्क्स एंजलियस, और सॉरी, मार्क्स MARCUS, मार्क्स AURELIUNS, किसी का नाम है बेसिकली. मार्क्स एस्टूडेंट्स सम अप दिस वेल. द impediment, IMPEDIDEMENT, the impediment of action, advance action. What stands in the way become the way. Wow, beautiful. What stands in the way become the way. Simply running into problem, simply running into a problem force you to take action to resolve it. That action will invisibly lead you to think differently, behave differently, and choose differently. The problem become a criteria catalyze. The problem become the catalyst for you to actualize the life you always wanted. It push you from your comfort zone. That's it. देखा, जो मैंने बोला वही उन्होंने बोला. हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं. जस्ट किडिंग. मैंने ये बुक को पहले भी पढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में रह जाती हैं चीज़ें. तो हाँ, तो इसमें लाइक वो वही बता रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्स इन द वे बिकम द वे. कि अगर आपके रास्ते में कोई चीज़ आती है, कोई अड़चन आती है, तो वो भी आपके रास्ते का पार्ट है. तो वो भी आपके लाइफ का पार्ट है, वो भी आपके रास्ते का पार्ट है. तो वो बन जाता है, आपका रास्ता बन जाता है. और जब आप उसको देखते हो, उस प्रॉब्लम को का सल्यूशन ढूंढने लगते हो, तो आप डिफरेंट तरीके से सोचते हो, आप डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हो, आप डिफरेंट एक्शन लेते हो. तो आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हो. आप नए लेसन मिलते हैं आपको, आप अपग्रेड करते हो खुद को. तो बस यही मतलब था इसका. और the seventh point, you think your past defines you. You think your past defines you. You think your past defines you, and the worse you think that is unchangeable reality. The worse you think that is unchangeable reality, when the really your perception of it change as you do. You think your past define you. The worse you think, the worse you think, that is unchangeable reality. When really, your perception of it change as you do. Because experience is always multidimensional. um, because experience are always because experience is always multidimensional. There are a variety of memories, experience, feelings, glists,
You can choose to recall, and what you choose is indicative, and what you choose is indicative to your present state of mind. So and what you choose is indicative of your present state of mind. So many people get caught up in so many people get caught up in allowing the past to define them or hunt them simply because they have not evolved to the place of seeing how the past did not prevent them from achieving the life they want. So many people get caught up in allowing the past to define them or hunt them simply because they have not evolved to place of seeing how the past did not prevent them from achieving the life they want. in in fact in FACILITED, fatalid it. This doesn't mean to record or close over painful or traumatic events, but simply to able to recall them with acceptance, and to be able to place them in the storyline of your personal evolution. थोड़ा सा मुश्किल है मेरे को समझना, बट जितना मेरे को समझ में आया उतना मेरे को ये समझ में आया कि यू थिंक पास्ट डिफाइन यू। हमें लगता है कि हमारा पास्ट हमें डिफ़ाइन करता है, जो भी अच्छे बुरे हमारे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। सॉरी, हमें लगता है कि हमारा पास्ट हमें डिफ़ाइन करता है, जो भी हमारे साथ अच्छे बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, सॉरी बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, स्पेशली जब हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली जब हम उन्हें एक नेगेटिव वे में देखते हैं, और हम डेफिनेटली जो भी हमारे साथ बीत गया है हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम उसको अपनी रियलिटी बना लेते हैं, जब हम उसको एक ही वे में देखते हैं, हम उसको एज आ पास्ट ट्रॉमा देखते हैं, हम उसको जब एज आ देखते हैं कि इनको तो अब चेंज नहीं किया जा सकता, यही हमारी रियलिटी है, जबकि उनको हम एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट प्लेस से, डिफरेंट वे से अगर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारी लाइफ की स्टोरी लाइन बन सकती है। हम उसको एज अ यूज़ कर सकते हैं इवॉल्व होने के लिए, हम उसको एज अ लेसन देख सकते हैं, या हम उसको एज अ देख सकते हैं कि ये जो मेरे साथ हुआ है इसको हम इस वे में भी देखा जा सकता है, इसको यहाँ से भी देखा जा सकता है, इसको उस तरीके से भी देखा जा सकता है। बट हम उस एक नेगेटिव रियलिटी को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम खुद को उसी वे में डिफ़ाइन करते हैं। यू थिंक योर पास्ट defines you, the words you think that is unchangeable, while reality is when you really perception, but the really your perception of it change as you do। कि अगर आप करना चाहें तो आपका परसेप्शन, उसको आप किस तरीके से देखते हैं वो चेंज किया जा सकता है, बट आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, वो आप उसी चीज़ को लेके कि जो अनचेंजेबल रियलिटी आप उसको उसी तरीके से देखे जा रहे हो। बट अगर हम अपना परसेप्शन, हम अपना देखने का नज़रिया थोड़ा सा भी चेंज करें तो उसको एक अलग स्टोरी लाइन से भी देखा जा सकता है। मेरे को इस चीज़ को ऐसे ही समझ में आया है, और मैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं इस चीज़ से रिलेट नहीं करता, मैं ऐसा अपनी लाइफ में कभी नहीं करता। मेरी लाइफ में बहुत से ख़राब एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत वाहियात एक्सपीरियंस हुए हैं। हर वो चीज़ जो मैं चाहता था कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव ही हुई है। हर वो चीज़ जिसको मैंने डिज़ायर किया था वो मेरे को लेट गो करना पड़ा है, उस चीज़ से मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। हर वो चीज़ मेरी लाइफ में ये एक पैटर्न में हुआ है, बट स्टिल मैं उस चीज़ को कभी उस चीज़ को कभी भी खुद पे हावी नहीं होने देता, उस चीज़ को वैसे नहीं देखता जैसे वो मेरे साथ घटी है। उस चीज़ को बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो वो
तो मैं उसको ऐसे नहीं देखता, ऐसे मान के नहीं बैठ जाता कि दुनिया ही बुरी है, सारी दुनिया ही ख़राब है। नहीं, दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर इवन वो इंसान जिसने मेरे साथ बुरा किया है वो भी कंप्लीटली बुरा नहीं है। वो अगर उसको मैं उसकी माँ की नज़र से देखूं तो वो कितना अच्छा इंसान होगा, वो कितना मासूम इंसान होगा। अगर मैं उसको उस अगर मैं उसको उसके भाई की नज़र से देखूं तो वो कितना डिफरेंट पर्सन होगा। उसकी फैमिली उसके लिए कितना केयर करती है। और लाइक अगर उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, दैट डज नॉट मीन कि वो पूरा का पूरा इंसान ही बुरा है। उसका मेरे साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब है, और वो दिल से मेरा बुरा नहीं चाहता होगा, या सिचुएशन वैसी रही होगी या कुछ भी वैसा हो। बट मैं इन द सेंस कि मैं उसको एक ऐसी स्टोरी लाइन में देखने की कोशिश कर लेता हूँ, और मैं कैपेबल भी हूँ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से एक ही चीज़ को देखने के। तो मेरे दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आ, मतलब उस चीज़ को, उस एक चीज़ को लेके नेगेटिव थॉट्स मैं पकड़ के नहीं रहता। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूँ इन नेगेटिव वे। मेरे साथ अगर कुछ नेगेटिव भी होगा तो मैं उसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल के अपनी लाइफ में लेसन डाल लूँगा, और मैं और सॉफ्ट और प्योर और पॉजिटिव बनूँगा। मेरी लाइफ का मोटिव यही है कि मेरे को एक बेस्ट पर्सन बनना है, एक बेहतर इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। और मैं अभी भी अपनी लाइफ में मतलब इस पोजीशन पे तो हूँ कि कई बार लोग मुझे देख के बोलते हैं कि यू आर टू गुड टू बी ट्रू। हाँ, बट मैं क्योंकि मैं उसी जर्नी में हूँ। मेरे को लगता है हर इंसान को उसी जर्नी में होना चाहिए कि कैसे खुद को बेहतर किया जा सकता है। तो मेरे साथ बहुत बार बुरा हुआ, बट मैं कभी भी उसको ऐसा लेके नहीं बैठ जाता कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है तो ये सारी दुनिया ही ऐसी है, सारी दुनिया ही ख़राब है, या ऐसा ही होता है, या मैं खुद को एक बुरा इंसान बना लूँ, या मैं खुद को बिटर इंसान बना लूँ, या मैं खुद को कठोर बना लूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने दिल को हमेशा नर्म रहने दूँ, अपने दिल पे कि जब मैं नए लोगों से मिलूँ या जब मैं किसी की लाइफ में जाऊँ तो उनको ये ना हो कि यार ये किस तरह के इंसान हैं। उनको 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 मिलने पे खुशी महसूस हो, उनको मिलने पे पॉजिटिविटी महसूस हो। जो प्यार मुझे नहीं मिला, मैं कोशिश करता हूँ कि बाकियों को दे पाऊँ। जो प्यार मैं क्रेव करता हूँ अपने बड़े भाई से, जब वो मुझे नहीं मिलता तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे से छोटे हैं मैं उनको उतना रूडली बिहेव ना करूँ, या उनके साथ उनको उस प्यार की कमी ना महसूस हो। तो मैं एक स्टेप खुद आगे जाके उनकी वो कोशिश करता हूँ कि उस जो वो खाली जगह है उसको फिल कर पाऊँ। जो वो ख़राब मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा है तो किसी और का एक्सपीरियंस ख़राब ना जाए मेरी वजह से। अगर मेरा किसी रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है तो किसी और का मेरी वजह से वो एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। तो इस वजह से मैं इस चीज़ से रिलेट नहीं करता, क्योंकि मैं इस लाइन पे ही नहीं हूँ। मैं इस चीज़ बट ये चीज़ ने मेरी दिमाग में और क्लियर कर दिया है कि लोग ऐसे होते हैं, लोग ऐसे हो सकते हैं। आपको दुनिया में इस तरह के लोग मिल सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक और जो अच्छी बात है कि जब आप अपने अंदर की कमियां देखते हो, जब किताब आपको बताती है कि आपके अंदर ये कमी हो सकती हैं, आपको ये भी समझ में आता है कि जिस दुनिया में आप रह रहे हो ऐसी कमी वाले बहुत से लोग होंगे जिन्होंने खुद के ऊपर काम नहीं किया है, या जो उस चीज़ के बारे में इतने अवेयर नहीं हैं। जैसे जैसे आप अवेयर बनते जाते हो आप उस चीज़ पे काम करना शुरू कर देते हो, आप उस चीज़ को सही करने में लग जाते हो। बट सारी दुनिया ऐसी नहीं है, सारी दुनिया नहीं कर रही है, इसलिए बहुत से लोगों को एंगर इशू होता है। और आई कैन पर्सनली आई कैन ऑब्जर्व दैट आई कैन ऑब्जर्व पीपल्स बिहेवियर, पीपल्स पैटर्न इन देयर लाइफ स्टाइल, इन देयर डे टू डे लाइफ, कि हाउ दे कम्युनिकेट, हाउ दे थिंक, हाउ दे बिहेव। कि कोई इंसान नॉर्मली सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, और जब वो गुस्से में होता है तब वो कैसा बिहेव करता है, जब वो गुस्से में होता है वो किस तरह की बातें करता है, जब वो भूखा होता है, जब उसको भूख लगी होती है, जब वो इरिटेट होता है, जब वो थका होता है वो किस तरह की बातें करता है। तो हर पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बारीक से बारीक डिटेल ऑब्जर्व करता हूँ मैं। तो उसमें मेरे को पता चलता है कि जो कमियां मेरे अंदर है वो बाकियों के अंदर भी है, और जो बाकियों के अंदर कमियां हो सकता है मेरे अंदर भी हो। तो ये एक एज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन बन जाता है। खुद को खुद का आपका दिमाग ही आपकी एक टॉर्च बन जाता है जो आपके अंदर झांकता है और अपनी कमियां देखता है और उसको इम्प्रूव करता है। बट दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं कर रहे होंगे, जो इतने सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, जिनको नहीं पता होगा
उनकी कमियां क्या है। और वो कोई भी हो सकता है, वो आपके पिता हो सकते हैं, वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके आसपास के दोस्त हो सकते हैं, वो आपके आपके लाइक आपके साथ आपके कलीग हो सकते हैं, आपकी कंपनी में काम करने वाले हो सकते हैं, या आपके साथ ट्रेन में बैठा कोई पर्सन हो सकता है जिसको अपने एंगर पे कंट्रोल ना हो और वो आपके साथ बैठा मिसबिहेव करते। तो उसका परसेप्शन, उसका उसका बिहेवियर आपकी ज़िंदगी को कैसे शेप करेगा, ये भी मैटर करता है। अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया और आप उसी बात को पकड़ के बैठ जाओ कि दुनिया तो ऐसे ही है, तो वो नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं हूँ, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, इस बात से मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, कनेक्ट नहीं कर सकता, बट मैं सीख सकता हूँ। बट मेरे को समझ में आ गया ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 7 पॉइंट हो गए और 8वां पॉइंट, और मैं पिछले 1 घंटे और 35 मिनट से बोले जा रहा हूँ। मैंने इतना कभी नहीं बोला एक साथ, बट मज़ा आ रहा है, बट अच्छा लग रहा है और क्लियर हो रहा है, और ठीक है, मज़ा आ रहा है आगे ठीक है, 8वां पॉइंट पढ़ते हैं। You try to change other people, situations, and things. You try to change other people's situations and things, or you just complain, get upset about them. When anger, self reflection, most negative emotions, reactions are most negative emotional reactions are you identify a distorted aspect of yourself. DISSOCIATET, Disexotated. पता नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, बट ठीक है। बट ठीक है, आगे मूव ऑन करो यार, मतलब सॉरी, बट मैं डिस OCIATED, ऑक्टेड, डिस डिसएक्स डिसएस हाँ, कितना मुश्किल है यार, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कितना मुश्किल लगता है, मतलब ठीक है। डिसएस्कोटेटेड, 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 टेड, डिसएस्कोटेड, डिसएस्कोटेड, डिसएस्कोटेड। वो देखा, ऐसे सीख जाते हैं, मतलब स्कूल में नहीं पढ़े हुए हैं या कॉलेज के नहीं पढ़े हुए हैं या कहीं पे नहीं सीखे हुए हैं, तो खुद से सीख जाते हैं। अगर अगर आपकी सीखने की मंशा है ना, तो आप कर लोगे, करते रहो। मेरे को ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट में ना बहुत बहुत वो मिलता है, डोपामिन, या बहुत अच्छा अच्छा फील होता है कि यार मैंने कर लिया। तो you just try to change other people, situation and things, or you just complain and get upset about them. When anger, self-reflection, and negative emotional reactions are you identify as disescorted aspect of yourself. अभी मेरे को इस लाइन, ऊपर वाली लाइन का समझ में आ गया कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट नीचे वाली लाइन का मेरे को मतलब नहीं समझ में आया। हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। योर शैडो स्लीव्स आर द पार्ट ऑफ यू that at some point you are conditioned to believe were not your shadow sleeves are the part of you that at some point you are conditioned to believe were not okay. You suppressed them. So you suppress them and suppress them and having done everything in your power not to acknowledge them. You do not actually dislike these parts of yourself
through your through so you through so when you see somebody else displaying one of these traits, it's in f I n f u infuriating, infiltrating, not because you intensely dislike it, but because you have to fight your desire to fully integrate it into your whole consciousness. The things you love about others are the things you love about yourself. The things you hate about others are the things you cannot see in yourself. थिंग्स यू कैनॉट सी इन योरसेल्फ. कितनी सुंदर बात कही है ना इसमें. मेरे को अब समझ में आया. मेरे को शुरुआत में नहीं समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे को अब समझ में आया. और इसका हिंदी में बहुत सुंदर सा मुहावरा है कि अगर आपको मेरे में अच्छाई दिखती है तो वो अच्छाई आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं. अगर आपको मेरे में कोई बुराई दिखती है या आपको समाज में कोई बुराई दिखती है तो वो बुराई कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है. तो मतलब ये पूरी तरीके से सच नहीं है, बट ये किसी लेवल पे सच है कि कि जब हम खुद में कोई बुराई देखते हैं या हमें पता होता है कि हमारे अंदर वो बुराई है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या हम कॉन्शियसली उसके बारे में अवेयर नहीं होना चाहते, तो हम सबकॉन्शियसली उसको हम कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई किसी भी तरीके का बहाना बना के उसको अपने अंदर सप्रेस कर लेते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं, या एक तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश कर उसको सामने नहीं लेके आना चाहते कि ये प्रॉब्लम है. हम उसको किसी दूसरे वर्ड या किसी दूसरे तरीके से छिपा देने की कोशिश करते हैं. तो बट वही जब प्रॉब्लम हमें किसी दूसरे इंसान, दूसरी सिचुएशन या दूसरी जगह पे दिखाई देती है तो हम ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं. जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत गुस्से वाला है और वो इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है कि वो कैसे अपने गुस्से की वजह से अपने रिश्ते ख़राब कर रहा है, अपनी लाइफ ख़राब कर रहा है, बट सेम पर्सन को कोई दूसरा इंसान नहीं पसंद आएगा कि जब वो गुस्सा करेगा. जैसे कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी है, रूप नाम है उसका. तो she have lots of toxic trait. She know that. उसको कहीं ना कहीं पता है, बट वो उसके बारे में अवेयर नहीं होना चाहती थी. मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिक ट्रेट हैं. बट जब वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो मैं उसको बताता रहता हूँ कि रूप तेरे में ये प्रॉब्लम है, तो इसको सही कर लेगी तो चीज़ें सही होने लग जाएंगी. तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है. बट उसने एक बार हम ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे थे और कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा डीप चली गई एंड शी स्टार्ट क्राइंग. और जब ऐसे मोमेंट में कोई इंसान वनरेबल होता है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और सॉफ्ट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है. हम जब अपने नॉर्मल बिहेवियर में होते हैं, जब हम किसी इमोशंस, हमारे ऊपर कोई इमोशंस भारी नहीं होता, तब भी हमारे ऊपर बहुत सारे इमोशंस भारी होते हैं. हमारी ईगो. जैसे कि हम नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब हम तब एक्सेप्ट कर सकते हैं जब हम इमोशनल होते हैं या जब हम बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं. जैसे कि उसको कोई प्रॉब्लम थी, कोई ईगो, बट उसकी ईगो वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी. बट एक दिन हम बात कर रहे थे और बात करते करते हम ऐसा इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए कि वो रोने लग गए. फिर उसने बोला कि शिव, जो मैंने किया है अगर मेरे साथ कोई करता तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करती. तो वो जो रिफ्लेक्शन है, जो वो अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रही थी, सॉरी रूप, मैंने बताया, मैंने एज अ एग्जांपल बताया. अगर तुम देख रही हो तो वो नहीं देखेगी शिव, वो नहीं देखेगी. हाँ तो वो उसके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस थे या जो वो अपने अंदर वो दबाने की कोशिश कर रही थी अपनी फीलिंग्स, तो जब सेम फीलिंग्स, सेम ट्रेट्स वो किसी दूसरे में देखती है
तो वो उसको बहुत इरिटेशन होता है, उसको बहुत हेट होती है, उसको बहुत चिढ़ मचती है कि ये पर्सन तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वो खुद में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसके अंदर भी वो सब ट्रेट्स हैं। तो तो ये सेम हम लोगों में देख सकते हैं, इमोशंस हम लोगों में देख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, तो जब उसको कोई गुस्से वाला पर्सन मिलता है या उसके आसपास कोई ऐसा पर्सन आता है तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं उस पर्सन से, बट वो अपने अंदर नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि वो गुस्से वाले हैं, वो एक लो क्वालिटी के इंसान है या वो एक घटिया इंसान है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो। बट एंड इन द सेम वे, एंड इन द पॉजिटिव वे, कि अगर हमारे अंदर कोई पॉजिटिविटी है, अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है, तो हम जब दूसरों में वो अच्छाई देखते हैं तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। बट कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि वो किसी की इंसान की अच्छाई में भी उनकी कमियां ढूंढने लगते हैं। जैसे कि आई एम वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, लाइक मैं अगर किसी से भी बात करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि लहज़ा कितना सॉफ्ट हो सकता है, लहज़ा कितना मीठा हो सकता है, कितने अच्छे से बात की जा सकती है, कितनी तमीज़ से बात की जा सकती है। क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, लाइक मतलब वेल एजुकेटेड नहीं है, हाईली एजुकेटेड नहीं है। वेल एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड नहीं है, कि बहुत बढ़िया कॉलेज में नहीं गए हैं बहुत। तो 24 घंटे तो अपना सर्टिफिकेट माथे पे लेके नहीं कोई भी घूमता, कोई भी डिग्री अपनी छाती पे चिपका के तो नहीं घूम रहा कि मैं MBBS हूँ, मैंने BA कर रखा है, मैंने MA कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। इंसान की तमीज़ से ही पता चलता है, इंसान के बात करने के लहजे से, इंसान के व्यवहार से ही पता चलता है कि वो कितना लाइक कितना पढ़ा लिखा है या कितना उसको तमीज़ है, या जो भी बातें हैं। तो वो सब बातें उन्हीं से पता चलती हैं, उस रिफ्लेक्शन से पता चलती हैं, आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कितने ज़्यादा तमीज़दार हो, कितनी आपको अकल है। तो वो सब बातें आपके लहजे से पता चलती हैं, आपके बिहेवियर से पता चलती हैं। तो हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो, बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज में गया हो, बट उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको लोगों से व्यवहार रखने की तमीज़ नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट नहीं बताते हैं आपको, वो लाइक आपकी डिग्रियाँ नहीं आप माथे पे लेके चिपका के घूम रहे हो, वो आपका बिहेवियर ही बताता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, बहुत सीखना होता है। क्योंकि कल को कोई ये ना कह दे कि ये बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं गया है, या कोई ये ना पूछ ले कि कितने पढ़े लिखे हो, कि तुम्हें तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है। ज़बान से ही पता चलना चाहिए कि कितने पढ़े लिखे हैं, कि कितनी किताबें पढ़ी हैं, कि कितने अच्छे लोगों से बैठे हैं, कितने अच्छे लोगों की संगत में रहे हैं, कितना कुछ सीखा है। ये आपके व्यवहार बताना चाहिए, आपकी बात करने की तमीज़ बतानी चाहिए। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि कभी कभी मैं लाइक ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनसे मैं बात कर रहा हूँ और लाइक उनके दिमाग में चल रहा होता है कि लाइक तुम फेक कर रहे हो, कि लाइक तुम कोई भी इतना सॉफ्ट स्पोकन, कोई भी इतना तमीज़दार नहीं होता, कि तुम इतना अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हो, कि तुम नाटक कर रहे हो। क्योंकि वो नाटक उनके अंदर चल रहा होता है। मतलब मैं ऐसा स्पेसिफिकली किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट इस चीज़ के वे में कि कैसे कोई इंसान इतना लाइक इनसिक्योर हो सकता है कि किसी की अच्छाई में भी उसकी बुराई देख ले, है ना। कि मतलब एक अच्छे लहजे में बात करना, एक बेहतर वे में बात करना, ये तो एक अच्छा पॉइंट है, बट लोग इसमें भी बुराई देख लेते हैं। लोग ढूंढने वाले इसमें भी अपनी इनसिक्योरिटी देख पाते हैं वो, क्योंकि वो फेक कर रहे हैं, उनका कोई एजेंडा होता है या उनकी कोई मतलब होते हैं, या वो अंदर से कड़वे होते हैं पर बाहर से मीठा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। तो मैं एक ज्योतिष भैया हैं, मतलब ज्योतिषी हैं, वो ज्योतिष वो करते हैं। तो उनके साथ कुछ दिन रहने का मौका मिला। तो लाइक वो अपने लाइक उनका एक छोटा सा मंदिर है, तो वो अपने मंदिर में बैठते थे। तो लाइक मैं उनसे लाइक ऐसा ज्योतिष सीख रहा था, या मतलब समथिंग कुछ, तो मतलब ऐसा वो था। तो उन्होंने मेरे को पहले बताया कि ज्योतिषी में आपको झूठ बहुत बोलना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। तो वो झूठ बोलते थे, या उनको लहज़ा मीठा रखना पड़ता है। बट जबकि उनके साथ रह के मेरे को पता चला कि उनके फैमिली में कितनी कड़वाहट है, या उनके लाइक अपने रिलेशंस में कितनी कड़वाहट है, या वो अंदर से कैसे हैं, कि जैसे बाहर से बन के दिखाते हैं वो अंदर से उतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि उनको झूठ बोलना पड़ता है, उनको लोगों को ठगना पड़ता है। कहीं ये कोई मतलब वो ना कर दे। मैं सब ज्योतिषियों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे ज्योतिषियों के बीच में बैठा हूँ। मेरा एक दोस्त है सौरभ आत्रे, पहले मैं उसकी तारीफ़ कर देता हूँ। मेरा एक दोस्त है सौरभ आत्रे, वो बहुत अच्छा पंडित है, बहुत ही ज्ञानी इंसान है।
तो बहुत ही अच्छा भी है लाइक मतलब। तो दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसका किसी प्रोफेशन से या किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं सब धर्मों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मानता हूँ। हालांकि ये फेमस भी नहीं होने वाली है, बट इन केस इन फ्यूचर कभी जाके ये वीडियो अगर फेमस हो जाए और लोग बोलेंगे कि यार ये धर्म के बारे में कैसा बोल रहा है, तो मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ। तो लाइक मैं रिलीजन या किसी धर्म के बारे में स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, बस वो पर्सन में ही मतलब कुछ कमी थी। लाइक उनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, या लाइक वो पी के गाली गलौज करते थे, बट वो उन्होंने शिखा रखी हुई थी। और वो गंदी मतलब माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, जो हम देने में कतराते हैं, या जो कि एक सिंपल एक अच्छे पारिवारिक माहौल में नहीं दी जाती। स्पेशली जब आपके घर में एक बेटी हो या आपके घर में लेडीज़ हों, तो आप बचते हो ऐसी गालियाँ का उपयोग करने से, तो आप सुनने से या आपके आसपास ना रहें। बट वो उस पर्सन को लाइक ड्रिंक करके मांस खाना, मदिरा पीना और ऐसे ऐसे अपशब्द यूज़ करना, गाली गलौज करना उनके लिए कॉमन था। तो बट वो जब जब वो मंदिर में बैठते थे अपना, क्योंकि उनका ज्योतिषी थे, वो पंडित थे, तो उनको जब वो करना पड़ता था, और तो तो वो बहुत मीठे बन के वो बात करते थे सबसे, बट जबकि रियलिटी कुछ और थी। तो इसलिए भी शायद जब वो किसी बेहतर इंसान को देखते, जब वो किसी अच्छे इंसान को देखते, तो उनको उसमें अपनी इनसिक्योरिटी महसूस होती। बट खैर मतलब एक लेसन के तौर पे बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मैं सिर्फ ये उनके बारे में नहीं है, मैं लाइफ में बहुत सारे क्योंकि मैं मंदिरों में रहा हूँ, और मैंने कथाएं सुनी हैं, मैंने साधु संतों के बीच में भी रहा हूँ। तो लाइक बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, कि लाइक बहुत साधु संत, बहुत सन्या जो मन से साधु होते हैं, जो लाइक जिनकी वेशभूषा इतनी अच्छी ना हो, इतनी बढ़िया ना हो, बट अगर उनके आप विचार सुनोगे तो इतना पवित्र विचार, इतने अच्छे विचार, इतने लाइक शुद्ध विचार कि आपकी ज़िंदगी बदल दें। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कपड़े तो उनके एकदम सफ़ेद, एकदम अच्छे कपड़े, अच्छा हुलिया, लाइक सब कुछ अच्छा, बट अगर आप उनके पास बैठोगे, उनके विचार सुनोगे, तो आपको महसूस होगा कि कितनी गंदगी भरी है उनके विचारों में। और ऐसे लोग पूरी दुनिया में होते हैं, मतलब अच्छे बुरे लोग पूरी दुनिया में होते हैं। इसीलिए जब मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगा था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये चीज़ सत्य है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ सच है, बट किसी हद तक। लाइक अगर कोई इंसान चोरी चकारी कर रहा है, या रेप कर रहा है, या लड़कियां छेड़ रहा है, और हम उसको नोटिस करके हम उसको बचाने जाएंगे, या हम उनको रोकने जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ है, या वो पर्सन छिपा हुआ है, या हम भी चोरी करना चाहते हैं, इसलिए हम उनको चोर बोल रहे हैं। मतलब आप बुरा होता हुआ नहीं देख सकते, आप बुरा होता हुआ नहीं देखना चाहिए, या उसको रोकना चाहिए, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर आप किसी में बुराई देखते हैं, तो वो बुराई ज़रूर आपके अंदर भी छुपी ना हो। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। बट हमें चाहिए क्या, हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए, कि अगर हम किसी में कोई बुराई देखते हैं, तो पहले हम अपने अंदर भी झांक के देख लें कि क्या वो बुराई सच में हमारे अंदर भी है। कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके अंदर तो हमें बुराई दिख रही है, बट अपने अंदर बुराई नहीं दिख रही है, या हम अपनी बुराइयां इग्नोर कर रहे हैं, या हम तो कोई बहुत दूध के धुले। कोई भी इंसान दूध का धुला होना नहीं होता। मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर इंसान बनने की, हर दिन कोशिश करता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ जो नेचुरल बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आता ही है, हर इंसान में होता है। बट वो किस लेवल का है, कितने लेवल तक उसको आपका उन चीज़ों पे कंट्रोल है, वही आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कामुक इंसान नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्रोधी इंसान नहीं हूँ। मेरे भी सेक्सुअल डिज़ायर है, मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे अंदर भी लोभ होता है, मेरे अंदर भी मोह आता है, हर इंसान के अंदर आता है। बट हमारा उन चीज़ों के ऊपर कितना कंट्रोल है, हम उन चीज़ों को कैसे डील करते हैं अपनी लाइफ में, या हम उन चीज़ों को कैसे देखते हैं, यही हमें एक बेहतर या घटिया इंसान बनाता है। कि मेरे अंदर अगर कामुक विचार उठ रहे हैं, और मैं बाहर जाके लड़कियां छेड़ रहा हूँ, और गलत गलत उन पे कमेंट पास कर रहा हूँ, या किसी को सोशल मीडिया पे जाके हरास कर रहा हूँ, या अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, या अपने अंदर का जो बुराई है वो लोगों में बांट रहा हूँ, तो मेरे अंदर रावण है, मेरे अंदर वो बुराई है।
तो मेरे को तो मैं शायद बाहर जाके साधु संत बनने का वो ढोंग रचूं कि यार लड़कियों की रिस्पेक्ट करूं, बट वो कोई ना कोई नोटिस कर लेगा, कोई ना कोई वो अंदर मेरे अंदर झांकी देख लेगा। मेरे को खुद ना खुद कहीं ना कहीं किसी दिन पता चल जाएगा कि मैं कितना बेहतर इंसान हूँ या कितना बुरा इंसान हूँ, वो पता चल जाएगा। तो यही बात है कि मतलब अगर आप अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हो तो तो लाइक हाँ, तो वो हो सकता है। तो आप बेहतर इंसान बन जाओगे। अदरवाइज़ अगर आप अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते हो, अगर आप अपने अंदर झांक के नहीं देख सकते हो, तो आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आपको दूसरे लोगों में दिखेगी, वो आपको बाकियों में दिखेगी, वो आपको और सेम विद द पॉजिटिविटी। अगर आप किसी इंसान में पॉजिटिविटी देख रहे हो तो इसका मतलब है वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। सो ऑल यू नीड इज़ अ सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो ऑल यू नीड अपने अंदर झांकना। इसमें एक बहुत सुंदर कबीर जी का दोहा भी है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोय, जो मन देखा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोय। तो कि जो दुनिया में बुराई देखने निकला तो मेरे को कोई बुरा नहीं दिखा। जब मैंने खुद के अंदर ही बुराई देखने की कोशिश की तो मुझे मुझसे बुरा कोई इंसान ही नहीं दिखा कि मैं कितना बुरा हूँ कि मैं समाज में बुराई देखने के लिए निकला हूँ। सो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये था कि आप पॉजिटिव देखें। अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो पहले उसको क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो आपको समाज में भी हर जगह वही चीज़ दिखेगी। क्लियर हुआ? हाँ, बट ये पूरी तरीके से भी सच नहीं है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को बार बार वही चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हाँ, तो ये इसके 8 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर कह लो या नेक्स्ट जो आने वाला है वो है द साइकोलॉजी ऑफ डेली रूटीन, जिसको कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले 2 घंटों से बोले जा रहा हूँ आई नीड सम रेस्ट। मैं कुछ 2 घंटे से एक ही पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, तो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं अभी थोड़ी देर में ही क्रिएट करूँगा, आई गेस सो, क्योंकि मेरे को ये वीडियो ठीक है। तो आई होप सो यू लाइक दैट वीडियो। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर, और अपने विचार आप क्या सोचते हो इन चीज़ों के बारे में, क्या सुना, क्या समझा, क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने ठीक है जो भी है, बस कमेंट लाइक शेयर कमेंट करो यार, देख लो। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा है तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। मेरे को बनाना ही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को बनाना है। मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे को अच्छा गॉड हाँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को बनाना है, मेरे को मज़ा आ रहा है। तो आई जस्ट लव क्रिएटिंग वीडियोस। पिछले मैं 2 घंटे से बोले जा रहा हूँ, अब मेरे को शांत होना चाहिए, मेरे को मौन होना चाहिए। और थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। अगर आधी भी देखी है तो थैंक यू सो मच। जितनी भी देखी है थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड माय नेम इज शिव एंड आई एम एन आर्टिस्ट। थैंक यू।